کراچی میں پاور شو۔ باغ جناح میں پیپلز پارٹی کی میزبانی میں پنڈال سج گیا ہے۔ پیپلز پارٹی، JUI، نون لیگ، ANP کے کارکن پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے میں پارٹی ترانوں پر جھوما بھی جا رہا ہے۔ جلسے سے مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز اور PDM کے دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ اطلاعات یہ ہے کہ 50,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ جلسہ گاہ میں تمام جماعتوں کے پرچم اور خیر مکتوبی بینر بھی آویزہ کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی سخت انتظامات کے ساتھ ہے۔ جلسہ گاہ میں اس وقت ماحول کیا ہے؟ سینئر اینکر فواد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد احمد، بتائیے گا، اس وقت ظاہری بات ہے 11 پارٹیوں کا شو ہے جس کی میزبانی پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ شو سجتے سجتے سجے گا، آغاز کیسا لگ رہا ہے؟ فواد تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ بہرحال پنڈال کا حال اور کی گئی تیاریوں سے متعلق وہی ہمیں اپڈیٹ بتائیں گے، بہرحال تاکہ ہم جان سکیں کہ کیا آغاز ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر جب اطلاعات یہ ہیں کہ سندھ کے دیگر شہروں سے بھی قافلوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس پنڈال کی رونق بڑھانے کے لیے ادھر پہنچ بھی چکی ہے اور پہنچ بھی رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت، مولانا فضل الرحمان، یہ سب ادھر پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال ایک سیاسی پاور شو کی تیاریاں ہو رہی ہیں جس کے آثار اب نظر آنا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ جی فواد، ابتدا کیا بتا رہی ہے کہ یہ بننے والی جو سچویشن ہے اس جلسے کی وہ مزید بہتر ہوگی، رش زیادہ ہوگا؟ جی دیکھیں سلمان، اس وقت PDM کا جو جلسہ ہے میرے عقب میں اس کا پنڈال ہے، اور پنڈال جو ہے وہ مکمل طور پر بھر چکا ہے۔ خواتین کا پورشن اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں خالی نظر آ رہا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورشن بھی بھرا ہوا ہے۔ تو اس وقت جلسے میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، سڑکیں بھی بھری ہوئی ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جلسے میں بھی لوگوں کی آمد کا انتظار کی وجہ سے قائدین کا خطاب کچھ دیر سے ہوگا۔ قائدین بھی اسٹیج کے اوپر آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور پہلی ٹیئر جو ہے قائدین کی رضا ربانی صاحب، سابق CM قائم علی شاہ صاحب، نثار کھڑو صاحب، ناصر شاہ صاحب، وہ مین کنٹینر کے اوپر موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید جلسہ کچھ دیر میں شروع ہو جائے۔ کارکنان کا جذبہ گرمانے کے لیے اس وقت نعرے بازی ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری سینئر اینکر پرسن بنی سلیم موجود ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ لاہور سے تشریف لائی ہیں۔ ان سے ذرا مریم نواز صاحبہ کی جو سیاسی انٹری ہے کراچی کے اندر اس کے حوالے سے ہی پوچھتے ہیں۔ بنش، ویلکم ٹو کراچی۔ آپ کراچی آئی، ایک بہت بڑا جلسہ آپ کے سامنے، ایک بہت بڑا پنڈال آپ کے عقب میں، ایک اسٹیج جو ہے وہ سجا ہوا ہے، جلسہ کچھ دیر کے اندر شروع ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ کی شاید پہلی انٹری ہے کراچی کے اندر۔ انہوں نے یہاں پر مزار قائد پہ حاضری بھی دی، یہاں پر میڈیا سے مختلف جگہوں پر بات بھی کی۔ کیا بات چیت آپ کی ہوئی؟ مریم کی باڈی لینگویج کیا دکھ رہی تھی آپ کو؟ بہت بہت شکریہ۔ اور اسی طرح آپ بھی اگر پنجاب آتے تو آپ کو پنجاب کا بھی رنگ دیکھنے کو ملتا، لیکن اس پنجاب سندھ کی ڈیوائڈ کے بعد آئی تھنک سو کہ یہ جو PDM کی ایک پوری تحریک ہے یہ زور پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کس حد تک یہ تحریک کامیاب ہوگی یہ دیکھنا ابھی باقی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ آج دوسرا جلسہ ہے PDM کا۔ بالکل آپ نے جیسے صحیح کہا فواد کہ مریم نواز صاحبہ کی آج جو انٹری ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اپنے والد صاحب کی ایبسنس میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کراچی آئی ہیں۔ بڑا ان کا بزی اسکیڈول رہنے والا، 2 دن کا ان کا دورہ ہے، کل بھی وہ کراچی میں ہی رہیں گی۔ آج آبویسلی میجر ٹائم ان کا جلسے میں گزرے گا۔ اب سے کوئی 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد مریم نواز صاحبہ ریلی کی صورت میں اس ہال کے اندر داخل ہوں گی، لیکن آبویسلی سب سے پہلے اس اسٹیڈیم کے اندر جو انٹری لیں گے وہ یہاں کے میزبان لیں گے جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں۔ میری مریم صاحبہ سے تقریباً کوئی 30-40 منٹ کی ایک گفتگو رہی، بیکاز ہم سیم فلائٹ پہ ٹریول کر رہے تھے لکیلی، اور اس گفتگو کے اندر وہ بہت پرعزم نظر آئیں۔ ان سے میں نے بار بار یہ پوچھا کہ کیا وہ بار بار یہ ٹھیک سمجھتی ہیں کہ جس طریقے سے اتنی اوپنلی آپ اسٹیبلشمنٹ کو یا اداروں کا ذکر کر رہی ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بس صرف ووٹ کو عزت دو، ایک چیز ان کے اور نواز شریف صاحب کے دماغ میں ہے، اور اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے عوام کی پرابلمس کو، مہنگائی کو دماغ میں رکھتے ہوئے ان کو جو ٹھیک لگے گا وہ کریں گے، اور اس کی جو بھی قیمت ان کو ادا کرنی پڑی وہ ادا کریں گی۔ ان کا اگر مریم نواز صاحبہ کا اور PMLN چیپٹر کا باقی کا اگر پلان دیکھا جائے اس کراچی وزٹ کے حوالے سے، تو کل صبح وہ محمد زبیر صاحب کے گھر کے اوپر ایک چھوٹا سا ان کا کھانا ہے، وہاں پر وہ شرکت کریں گی، اپنی لوکل قیادت سے گفتگو کریں گی، اور اس کے بعد پھر تقریباً 4-5 بجے کے قریب وہ واپسی لاہور کی طرف جائیں گی۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پر کہ میں نے 5 سال اپنے کراچی کے اندر گزارے ہیں، اور تب بھی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوا کرتی تھی، لیکن تب کے دور میں اور اب کے دور میں یہ فرق آیا ہے کہ جب میں آج کراچی ایئرپورٹ پہ اتری تو ایئرپورٹ سے لے کر کے شارع فیصل تک، ایئرپورٹ سے لے کر کے میریٹ ہوٹل تک، ایئرپورٹ سے لے کر کے اس جگہ کے پنڈال تک وقتاً فوقتاً فریکوینٹلی ہمیں نون لیگ کے بینرز نظر آئے۔
अच्छी चीज़ क्या नज़र आई? शायद ये जमहूरियत का हुस्न है फवाद, कि अच्छी चीज़ ये है कि मुझे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर, मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर नीचे पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ नजर आई। यानी कि सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने, सिंध की हुकूमत ने उनको वेलकम किया क्योंकि वो मेज़बान थे, और क्या मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा किया। अगर क्राउड की बात करें, ज़रा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी सकें, सॉरी मैं माइक ले रही हूँ, उस साइड पे वो साइड बिल्कुल भरी हुई है, इतने झंडे हैं, इतने लोग हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो कि सिंध में एज मिलता है लोगों को, कराची में एज मिलता है, वो ये है कि कराची में पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है। ये मेरे पीछे अगर कैमरामैन पैन कर सके तो मेरे पीछे ये वो कंटेनर है जहाँ पे इनकी मरकजी क़यादत होगी, जिसमें इनके एमपीएस होंगे सिंध के, जिन पे इनकी मीडिया टीम्स बैठेगी। उसके साथ जो वो बड़ा स्टेज आप देख रहे हैं, ये वो स्टेज है जिस पर पीडीएम के रूहे रवा, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसके ऊपर जो है वाइस प्रेसिडेंट आपकी पीएमएलएन की मरियम नवाज साहिबा, जिसके ऊपर आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े होकर के तारीखी खिताबात करते हुए नजर आएंगे। और उनके बिल्कुल बराबर में एक्चुअली वो जगह है जहाँ से मैं यहाँ आई हूँ भाग के आप लोग को अपडेट करने के लिए, जहाँ पे उन्होंने एंकर्स के लिए एक्सक्लूसिव रखा हुआ है। अच्छा बिनिश, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा जब एयरपोर्ट पर आपके साथ थी, जहाज में भी आपकी उनसे गुफ्तगू हुई, कराची आने के हवाले से वो कितनी एक्साइटेड थी? क्योंकि कराची में उनकी पहली मैच, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि सियासी एंट्री पहली है, तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मईशत यहाँ से चलती है, कारोबार यहाँ से चलता है, पाकिस्तान का एक समझ लें कि इकोनॉमी का इंजन है कि जो यहाँ से चलता है। तो मरियम नवाज साहिबा के जज्बात क्या थे? क्योंकि हमने गुजरांवाला के जलसे में तो देखा कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो पीडीएम का एक तहरीक का किक लग रहा था, तो उसको लेकर जो है बहुत एक्साइटेड थी। यहाँ पर आते हुए उनकी क्या सूरत हाल थी? यहाँ पर भी एक्साइटमेंट ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पर होस्ट मरियम नवाज थी, यानी पीएमएलएन थी। लेकिन मरियम साहिबा इसलिए भी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वहाँ पे ताहयात कायद पीएमएलएन के नवाज शरीफ साहब ने खिताब करना था। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने खिताब नहीं करना, लेकिन मरियम नवाज साहिबा इसलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि वो मुझे बारहा रास्ते में भी बता रही थी कि वो एक बड़ा अच्छा एक पर्सनल रेपो, एक पर्सनल बॉन्ड भी शेयर करती हैं बिलावल साहब के साथ। वो मुझे ये भी बता रही थी कि जिस तरीके से उनकी पिछली कुछ मुलाकातों में मरियम नवाज साहिबा और आसिफ अली जरदारी के जो मुकालमे हुए, तो मरियम साहिबा ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कहा कि आप मुझे बिल्कुल बेटी की तरह लगती है और मुझे घबराहट होती है मरियम, क्योंकि आप मेरी बेटी की तरह, जो मुझे घबराहट होती है। तो बड़े अच्छे, बड़े रिस्पेक्टफुल वर्ड्स मरियम नवाज साहिबा ने जरदारी साहब के लिए भी बोले। सो वो एक कंफर्ट लेवल पूरे रास्ते में नजर आया, क्योंकि जब मरियम साहिबा लैंड की तो उनको लेने के लिए शहला रजा साहिबा पहुंची, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट एमपीए हैं। शहला रजा साहिबा पीएमएलएन के और दीगर सीनियर एमपीएस के साथ पहुंची, खवातीन एमपीएस थी जिन्होंने मरियम नवाज साहिबा को खुशामदीद किया। पता नहीं कैमरास ने उनको कितना कैप्चर किया, उनको फूलों के गुलदस्ते दिए, उनको हार पहनाए गए, और फिर शर्जील मेमन साहब ने मरियम नवाज साहिबा को अपनी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो प्रोवाइड की, यानी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के अच्छे वेलकम तक। तो एक कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन का ख्याल रखा गया है। अच्छा बिनिश, एक चीज़ ये बताइएगा कि आज का जलसा आप देख रही हैं, मियां नवाज शरीफ की तस्वीरें जो है उसके नीचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है झंडे का रंग और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिखा नजर आ रहा है। एक ये तब्दीली है, जो हरीफ जमातें थी माजी की, वो लगता ये है कि इस पीडीएम की तहरीक के नतीजे में आपस में करीब आ रही हैं, और हम दूसरा जलसा ये देख रहे हैं कि जो मुश्तरका तौर पर है बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर तारीखी हवालों से दोनों जमातों की दूरियों को आज कुर्बत के साथ आप देखें तो क्या आपको मवाजना नजर आता है? मवाजना मेरे ख्याल से मैं क्रेडिट देना चाहूंगी, और मेरे ख्याल से फवाद आपको भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपको भी नई जनरेशन को, और नई जनरेशन से मुराद मेरा उम्र का ब्रैकेट नहीं है कि 20 साल के, 40 साल के, 50 साल के। नई जनरेशन इज द न्यू जनरेशन, वट एवर एज दे आर, एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन इसका हमें क्रेडिट, इस जमहूरियत जितनी भी रही सही रह गई है उसको आगे लेके चलने का क्रेडिट कहीं ना कहीं हमें देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में, सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, रास्ते बंद नहीं होते, गुफ्तगू रहनी चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, भी जब रिसेंटली बिलावल साहब लाहौर आए थे, मैंने एक्सक्लूसिवली उनसे पूछा कि बिलावल साहब आपका राब्ता होता है मरियम साहिबा से, लेकिन उस टाइम पर मरियम खुद साख्ता खामोशी में थी। तो बिलावल साहब ने मुझे खुद एक्सक्लूसिवली कहा ऑन द फेस ऑफ मी, उन्होंने मेरे मुंह पर ये बोला कि बीनश ताली एक हाथ से नहीं बजती, जब मरियम को मेरी ज़रूरत होगी या जब मरियम साहिबा को लगेगा कि उनको बात करनी है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। वो कहीं ना कहीं बात अब बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये सब इकट्ठे हुए हैं इस हुकूमत के खात्मे के लिए, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है जो कि मैं नाजरीन के लिए छोड़ना चाहूँगी, क्योंकि इसका जवाब मुझे भी नहीं पता कि क्या ये सब मिलकर हुकूमत को गिरा पाएंगे। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। हाँ, हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे,
शायद कर पाएंगे। अच्छा बिनिश, कराची के इसी ग्राउंड ने बड़े बड़े जलसे भी देखे हैं। यहाँ पर इंतखाबात से पहले हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने अकेले बहुत बड़ा जलसा किया। यहाँ पर मुत्तहिदा के कायद ने ख़वातीन का एक बहुत बड़ा जलसा किया था जिस वक्त MKM मुत्तहिद हुआ करती थी, जो कि किस्सा माजी का बन चुका है। तो इस ग्राउंड ने तो बहुत बड़े बड़े जलसे भी देखे हैं। आज का जलसा भी इंप्रेसिव है, बड़ा है। हम देख रहे हैं क्राउड चार्ज भी है। जो एक PTI की लीडरशिप की जानिब से इल्ज़ाम आ रहा था कि क्राउड से चार्ज नहीं है, तो गुजरांवाला में तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन कराची में मैं देख रहा हूँ कि क्राउड चार्ज है। जब आप इस जलसे को कंपेयर करती हैं माजी में कराची की बड़ी बड़ी मूवमेंट्स से, बड़े बड़े जलसों से, तो ये आपको कहाँ खड़ा नजर आता है? ये जलसा माजी में बहुत बड़े बड़े जलसे हो, लेकिन इस जलसे की एक जो स्पेशल चीज़ ये है कि आपको पहली दफ़ा इस मैग्नीट्यूड पर ऑपोजिशन इकट्ठी नज़र आ रही है। ऐसा माजी में कब हुआ है कि पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर आपकी बाकी जो जमातें हैं मिल करके, जो जितनी भी छोटी बड़ी जमातें हैं वो मिल करके, जो मेन जमातें मैंने आपको बता दी, वो मिल करके एक इतने बड़े पावर शो का एहतमाम करें। एंड देन अगेन नंबर ऑफ पीपल मैटर नहीं करते, नो डाउट। इसका ये मतलब नहीं है कि इस जलसे में ज़्यादा लोग नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा है। और उसकी रीज़न मैं आपको ये बताती हूँ। अभी जब शुरका की तादाद में मजीद इजाफा हो जाएगा, जब बिलावल साहब आएंगे, जब मरियम साहिबा आएंगी, जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे, क्योंकि उनके साथ उनके सपोर्टर्स भी आएंगे, वो सपोर्टर्स जो उनके साथ पंजाब से चले हैं, वो सपोर्टर्स जो यहाँ के हैं लेकिन अपने अपने जो कायद हैं उनकी या अपने अपने लीडर्स के लिए आने शुरू हुए हैं। तो अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन लोग फिर भी इसलिए मैटर नहीं करते क्योंकि जब लीडरशिप इकट्ठी हो, जब तकारीर का क्रस्ट और मुद्दा इनका एक हो, तो इम्पैक्ट उसका डिफरेंट होता है। इससे पहले कराची ने, इससे पहले इस ग्राउंड ने ये नहीं देखा। हाँ, बहुत बड़ा जलसा होगा। पीपल्स पार्टी हर साल इस तारीख को 18 अक्टूबर को जलसा करती है, ये एक उनकी रिवायत है, उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में इस दफ़ा तड़का लगा दिया है मरियम नवाज साहिबा की प्रेजेंस ने, इस माहौल में तड़का लगा दिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेजेंस ने। और जिस तरीके से एक बेनिफिट जाता है, क्योंकि सिंध में हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है, तो यहाँ पर वो रुकावटें, वो वायलेशंस, वो तशद्दुद, वो हरासमेंट, वो मैनिपुलेशन नज़र नहीं आई जो हमें पंजाब में पंजाब हुकूमत की नज़र आई थी PMLN के अगेंस्ट। लेकिन उस मैनिपुलेशन, उस तशद्दुद के बावजूद गुजरांवाला के अंदर जो चाहे मर्जी कह ले, मकसद जो भी हो, लेकिन जलसा हुआ, लोग आए, कायदीन पहुँचे, तकरीरें हुई, तकरीरें चली भी, लोगों ने सुनी भी, और हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने उसका रिएक्शन भी दिया। अच्छा, आप समझती नहीं है कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जो जिस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, वो रिएक्शन जो है इन जलसों के अंदर लोगों की आमद में इजाफे का सबब बन रहा है, बजाय इसके कि लोग जो है शायद प्राइम मिनिस्टर की बात सुनकर कम हो जलसों के अंदर? लेकिन आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की बात ने इस जलसे को जिला बख्शी है और ये जलसा बढ़ गया उसकी वजह से? सिर्फ इस जलसे को नहीं, इस पूरे PDM की रूह को, इस पूरी तहरीक को। और अगर ये तहरीक जो कि नजर आ रहा है कि बढ़ रही है, ये तहरीक बढ़ेगी, मकासद पूरे कर पाएगी कि नहीं, लेकिन ये तहरीक बढ़ेगी जरूर, प्रेशर जरूर बिल्ड करेगी, तो कहीं ना कहीं इसमें हुकूमत का किरदार जरूर होगा। कल भी हम देख रहे थे कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जब कन्वेंशन सेंटर में गए, उस कन्वेंशन सेंटर में जिसका उनको ऑलरेडी नोटिस दिया जा चुका है, उस कन्वेंशन सेंटर में जिसके ऊपर उनको मना किया जा चुका है कि आप एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से बात नहीं कर सकते बिकॉज आप पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वहां पर भी उन्होंने सिर्फ उस तकरीर का जवाब दिया जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चली। जिन्होंने नवाज शरीफ की तकरीर नहीं सुनी, उन्होंने वो चीज भी उनको सुनवाई। सो कहीं ना कहीं हुकूमत का रिएक्शन जो आ रहा है वो वैसा आ रहा है जो कि एक टाइम पर ऑपोजिशन का आया करता था। मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको लगता है कि ये एक जलसा गुजरांवाला में हुआ, दूसरा जलसा कराची में हो रहा है, ये जलसा मोमेंटम अगला बलूचिस्तान में होने वाला है, आपको लगता है कि तहरीक का एक मोमेंटम बनेगा? लगता है? ये सिर्फ मुख्तसर जवाब दीजिएगा, हम क्लोज पे जा रहे हैं। बिल्कुल मोमेंटम बढ़ेगा एंड बाकी लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। लेकिन अभी तक गुजरांवाला का जलसा भी बड़ा था, ये जलसा भी बड़ा होगा क्योंकि अभी मजीद शुरुआत आएंगे और उम्मीद यही की जा रही है कि इस तहरीक में जान बढ़ चुकी है और ये जान आगे। चले, बहुत शुक्रिया। बिनिश हमारे साथ मौजूद थी। जलसा आपसे कुछ देर में बस शुरू हुआ, चाहता है आपके साथ मौजूद होंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। जी थैंक यू फवाद बिनिश में कराची में इस पंडाल के बाहर उनका जैसे बताना और मंजर कशी भी साथ साथ हो रही है कि बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे मौके पर अभी की टॉप लीडरशिप नहीं पहुंची है। बिलावल ने भी एक रैली की शक्ल में इधर पहुंचना है और 1 से 1.5 घंटे बाद मरियम भी इधर पहुंचेंगी और मौलाना फजलुर रहमान का एक अपना सपोर्टर भी इधर मौजूद है। खैर आने वाले चंद घंटों में बहुत सी चीज़ें वाजे हो जाएंगी। ऐसे में खबर आपको दें कि वज़ीर आज़म अंदर से घबराए हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि गो न्याजी गो के नारे लग चुके हैं। जाली वज़ीर आज़म ओहदा छोड़ दें, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना वज़ीर आज़म का काम नहीं। बेहिस हुकूमत महंगाई का तूफान बर्पा किया, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जो मौजूदा हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, बेहिस हुकूमत है, उसने जो अवाम के ऊपर महंगाई के हवाले से तूफान बर्पा किया है,
جس میں عوام پس کے رہ گئی ہے، اس کا بھی احتجاج آج کیا جائے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس جلسے کے لیے پورے سندھ سے ہمارے لوگ شرکت کرنے آ رہے ہیں، خوشی سے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے خاص طور پہ ایک بڑی تعداد پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی